آئیے سنتے ہیں بدھا کے اقوال پر مبنی کتاب دھم پد کا 8واں حصہ۔ آج کی ایپیسوڈ میں شامل اقوال کو پہلے سن لیتے ہیں۔ کون ہے زمین کا فاتح، زندگی کا فاتح؟ کون زمین کو اور آسمان کو جیت پایا؟ کون دانا ہے جو نیکی کے راستے کو یوں چن لے جیسے ماہر مالی باغ کے سب سے حسین پھول کو چن لیتا ہے؟ ایک سچا سالک سیکر وہ ہے جو ابدی آسمان اور فانی زمین دونوں کو جیت لیتا ہے۔ ایسا سالک حق کی راہ یوں ڈھونڈ لیتا ہے جیسے ماہر مالی سب سے حسین پھول۔ اس جسم کو جھاگ اور بلبلے کی مانند فانی جان کر اور سراب جیسی اس کی حقیقت کو پہچان کر انسان کو چاہیے کہ دنیا کی فریب کار کشش کے پھول توڑ دے اور موت کے بادشاہ یعنی شیطان کی نگاہوں سے اوجھل ہو کر آگے بڑھ جائے۔ جس کا دل دنیا کی رنگینیوں اور خواہش کے پھول چننے میں کھویا رہا اور جو دنیا کی محبت میں گرفتار ہوا، موت اسے یوں بہا لے جاتی ہے جیسے تیز سیلاب سوئے ہوئے گاؤں کو بہا لے جاتا ہے۔ جس طرح بھنورا پھول کے رنگ اور خوشبو کو نقصان پہنچائے بغیر صرف اس کا رس لے کر اڑ جاتا ہے، اسی طرح ایک دانا انسان کو چاہیے کہ وہ اس دنیا کی بستی میں جیے۔ اب چلتے ہیں اقوال کی تشریح کی طرف۔ یاد رکھو، اگر زندگی صرف چلنے کا نام ہوتی تو سبھی منزل پر پہنچ گئے ہوتے، کیونکہ چلتے تو سبھی ہیں، چلتے ہی نہیں دوڑتے ہیں۔ انسان ساری زندگی اسی دوڑ میں گنوا دیتا ہے، مگر منزل پر کبھی کوئی ایک آدھ ہی پہنچ پاتا ہے۔ یہ چلنا کیسا ہے کہ جس میں پہنچنا ہو ہی نہیں رہا؟ یہ جینا کیسا ہے جس میں زندگی کا حقیقی ذائقہ مل ہی نہیں رہا؟ یہ ہونا کیسا ہے کہ جس میں ہونے کا کوئی لطف، کوئی کیف ہی نہیں؟ اسے بڑھنا کہو گے یا بھٹکنا؟ وہ چلنا بھی کیا چلنا کہ جس میں منزل کا نشان تک نہ ملے؟ ذرا سوچو نا، انسان دولت کے پیچھے چلا، اندھا دھند بھاگا، اب دولت ملی یا نہیں اس کو بھی چھوڑو، یہ بتاؤ کہ کیا پہنچنا ہوا؟ کیا اندر کہیں یہ تکمیل جاگی کہ بس پالی دولت؟ کیا وہ خلا بھر گیا جو اسے دوڑا رہا تھا، یا وہ خلا پہلے سے بھی زیادہ گہرا اور وسیع ہو گیا؟ اگر دوڑنے کے بعد، حاصل کرنے کے بعد بھی پیاس نہیں بجھی بلکہ مزید بھڑک اٹھی، تو اسے سفر کہنا خود کو دھوکہ دینے کے سوا اور کیا ہے؟ تو جس سفر میں پہنچنا نہیں ہوتا اس کو سفر کیوں کہہ رہے ہو؟ سفر کا تو مطلب ہی بس ایک ہے کہ جس کے آخری سرے کو تم منزل کہہ سکو، وہ جگہ کہ جہاں پہنچنے کے لیے سارا سفر تھا۔ صرف چلتے رہنے کو سفر تھوڑی کہتے ہیں، صرف رستوں کو روندنے کا نام سفر تھوڑی ہے۔ پاؤں کے آبلے اس بات کی دلیل نہیں کہ تم صحیح سمت میں جا رہے ہو۔ راستے ہوں یا سفر، ان کو منزل سے جڑا ہونا چاہیے۔ اگر رستہ منزل پر ختم نہیں ہوتا تو وہ رستہ نہیں، وہ بھول بھلیاں ہے، وہ ایک دائرہ ہے جس میں انسان کولہو کے بیل کی طرح گھومتا رہتا ہے، آنکھوں پر پٹی باندھے، یہ سمجھ کر کہ وہ بہت چل رہا ہے، بڑے فاصلے طے کر رہا ہے، مگر دن کے آخر میں پتہ چلتا ہے کہ وہی کھڑا ہے جہاں صبح اس نے چلنا شروع کیا تھا۔ بدھا کہتے ہیں، منزل تک تو صرف وہی پہنچا جو جاگا۔ سوئے سوئے چلنے سے رستے تھوڑی کٹتے ہیں۔ کوئی نیند میں چل رہا ہو تو اسے چلنا تھوڑی کہو گے۔ چلنا تو وہی جو ہوش میں ہو۔ چلنے میں ہوش مل جائے تو ہر رستہ منزل تک لے جاتا ہے۔ چلنے میں ہوش شامل ہو تب کرشمہ ہوتا ہے، معجزہ ہوتا ہے۔ انسان تب بنا چلے ہی پہنچ جاتا ہے۔ یہ بات سننے میں عجیب لگ سکتی ہے کہ بنا چلے کیسے پہنچا جا سکتا ہے، لیکن روحانیت کی دنیا میں یہی سب سے بڑا راز ہے۔ جو جاگا اسے پہنچنے کے لیے باہر چلنا ہی نہیں پڑا، کیونکہ جاگنا ہی اصل میں منزل ہے۔ منزل کہیں باہر نہیں، کسی پہاڑ کی چوٹی پر نہیں، کسی دوسرے زمانے میں نہیں۔ منزل تو تمہارے اندر ہے، تمہارے شعور کی بیداری کا نام ہے منزل۔ اب کوئی سویا ہو تو اسے جگانے کے لیے کیا کوئی مشقت کرنا پڑتی ہے؟ کیا اسے میلوں کا سفر کرنا پڑتا ہے؟ نہیں، بس آنکھ کھول لینی ہے۔ پلک جھپکنے کا فاصلہ ہے نیند اور بیداری میں، بس اتنا ہی فاصلہ ہے انسان اور اس کی حتمی منزل میں۔ یاد رکھنا، زندگی گزارنے کے دو طریقے ہیں، باقی ساری تقسیمیں اضافی ہیں۔ ایک طریقہ غفلت کا ہے، بے ہوشی کا،
एक तरीका आगही का, होश का। अक्सरियत तो है उनकी जो बस चलते रहने, बस दौड़ते रहना चुनते हैं। ये वो चलना है जिसमें मंजिल के नाम पर मौत तो आती है, मुसर्रत नहीं आती। ये लोग थकते तो बहुत हैं, पसीना तो बहुत बहाते हैं, जूते तो बहुत घिसाते हैं, मगर पहुँचते कहीं नहीं हैं। रास्ता इनके दामन में धूल तो बहुत भरता है, मगर मंजिल की तसल्ली, तशफ़ी और तस्कीन कभी नहीं देता। इनकी सारी दौड़ बस कब्र तक पहुंचने की दौड़ है। इंसान बड़ी मंतकी और चालाक मखलूक है। इसे पता है कहीं पहुंचना नहीं हो रहा, अंदर से जानता है कि खाली है, खाली हाथ है, मगर चल रहा है। इसलिए मंतकें तराशनी पड़ती हैं, इसलिए वो मंतक तराश लेता है। अपने इस बेमानी सफ़र को मानी देने के लिए वो झूठे फ़लसफ़े घड़ लेता है। ये जो तुम सुनते हो कि जी जितना भी दौड़ लो मंजिल तो मौत ही है, मंजिल मौत है, ये किसी जानने से नहीं निकला। ये फ़िक्रा जाग से, होश से, बेदारी से नहीं निकला, ये भी बेहोशी से निकला है। ये मायूसी से निकला है, ये मायूसों का फ़लसफ़ा है। ये शिकस्त खुर्दा जहन की पैदावार है कि जब बहुत चलने के बाद भी कुछ मिलता नज़र नहीं आता, जब सबको देखते हैं, आसपास को देखते हैं, दौड़ ही नज़र आती है, मंजिलें नज़र नहीं आती, तो इंसान दलील तराश लेता है कि जी मौत ही मंजिल है। ये बेहोश इंसान की दलील होती है खुद को तसल्ली देने की और ना जागने देने की। वो मौत को मंजिल कहकर अपनी ज़िंदगी की नाकामी पर पर्दा डालना चाहता है। हालांकि मौत मंजिल नहीं है, मौत तो सफ़र का इख्तिताम है, और सफ़र का इख्तिताम और मंजिल का हसूल दो अलग अलग चीज़ें हैं। हो सकता है सफ़र ख़त्म हो जाए मगर मंजिल ना मिली हो। एक और ढंग है चलने का, होश के साथ, जाग कर। ये पैरों का इतना सवाल नहीं जितना आँखों का सवाल है, ये ताकत का इतना सवाल नहीं जितना सुकून का सवाल है। नशे में, गफलत में, सोए सोए कितना ही चलो, कहीं नहीं पहुंचोगे। ये सफ़र ऐसा है जैसे कोई शख्स ख्वाब में दौड़ रहा है। वो ख्वाब में कितना ही दूर चला जाए, जब आँख खुलेगी खुद को पाएगा अपने ही बिस्तर पर। बिल्कुल ऐसे ही गफलत में जीने वाला इंसान दुनिया में कितने ही महल्लात बना ले, कितनी ही सल्तनतें फतह कर ले, जब मौत की घड़ी उसकी आँख खोलती है तो वो पाता है कि वो तो वहीं खड़ा है जहाँ से चला था, खाली हाथ, नंगा, तन्हा। बुधा कहता है, फातेह कौन, कौन जीतेगा इस ज़मीन को और इस फना की दुनिया को। ये सवाल बज़ाहिर बहुत सादा सा लगता है, मगर इसके अंदर इंसानी तारीख़ का सबसे बड़ा तज़ाद छुपा है। हम फातेह किसे कहते हैं? सिकंदर आज़म को, चंगेज़ खान को, नेपोलियन बोनापार्ट को। वो लोग जिन्होंने तलवार के ज़ोर पर ज़मीन के बड़े बड़े टुकड़ों पर अपना झंडा गाड़ा, जिन्होंने लाखों इंसान के खून से ज़मीन को रंगीन किया। तारीख़ की किताबें उन्हें फातेह कहती हैं, लेकिन बुद्धा की नज़र में और हकीकी तौर पर ये लोग फातेह नहीं थे, ये तो सबसे बड़े हारे हुए लोग थे। क्यों? क्योंकि जो इंसान अपनी हवस का ग़ुलाम हो गया, जो ख्वाहिशात के हाथों मजबूर मारता और काटता फिरे, वो बादशाह कैसे हुआ? वो तो अपनी ही नफ्सियात का कैदी है। सिकंदर जब दुनिया जीतने निकला था तो उसके दिल में एक खलात था, एक बेचैनी थी, जिसे वो दुनिया भर की दौलत से भर लेना चाहता था। मगर जब वो मरा तो हाथ खाली थे। उसने कहा था, मेरे हाथ कफन से बाहर रखना ताकि दुनिया देखे सिकंदर भी खाली हाथ ही जाता है। तो जिसने सारी ज़मीन जीत ली मगर ख़ुद को ना जीत सका, वो फातेह कैसा? वो तो एक भिखारी था जिसका कशकोल कभी भर ना सका। बुद्ध पूछते हैं, कौन है वो जो इस ज़मीन को और इस आसमान को भी जीत ले, यानी जो सिर्फ मादे का ही नहीं बल्कि रूह का भी बादशाह हो, जो सिर्फ ज़ाहिर का नहीं बातिन का भी हुक्मरान हो। और फिर वो जवाब देते हैं, एक सच्चा तालिब इल्म, एक सीकर, एक सालिक। गौर करो, बुद्धा ने यहाँ बादशाह, जंगजू या आलिम का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने कहा सालिक, सीखने वाला, तालिब इल्म। इस इंतखाब में बड़ी हिकमत है। इल्म वो होता है जो समझता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मेरा प्याला भरा हुआ है और जो भरा हुआ है उसमें मज़ीद कुछ समा नहीं सकता। इल्म तकब्बुर है जो इंसान को अंधा करता है, सीखने के अमल को रोकता है। मगर जो सीकर होता है, जो तालिब इल्म होता है, वो कहता है मैं खाली हूँ,
वो आजी से सर झुकाए खड़ा होता है और कहता है मैं नहीं जानता, जानना चाहता हूँ। जिंदगी का राज सिर्फ उसी पर खुलता है जो बच्चे की तरह मासूम और मुतजस्सिस होकर सवाल करे, जो पहले से तयशुदा नज़रियात और तासुबात की ऐनक उतार कर दुनिया को नंगी आंख से देखने का हौसला करे। फातेह वही जिसने जाना कि बाहर की दुनिया को जीतने से अंदर का खालीपन कभी भर सकता नहीं, जो जान गया कि असली जंग बाहर के मैदान में नहीं अंदर की दुनिया में लड़ी जानी है। ये जंग होश और गफलत, सोए हुए और जागे हुए के दरमियान है। ये जंग मोहब्बत और नफ़रत के दरमियान है। ये जंग अना और हस्ती के दरमियान है। और जो इस अंदरूनी जंग में अपनी गफलत को शिकस्त दे देता है, अपनी बेहोशी को हरा देता है, जो अना के सांप का सर कुचल देता है, वही है हकीकी सिकंदर। बुद्धा कहते हैं ये सच्चा सालिक नेकी के रास्ते को यूं चुनता है जैसे एक माहिर माली बाग का बेहतरीन फूल चुनता है। मिसाल बड़ी खूबसूरत और मानी खेज है। सोचो एक घना बाग है, उस बाग में हर तरह की चीज़ें हैं, खूबसूरत गुलाब भी हैं और चुभने वाले कांटे भी, खुशबूदार चंबेली भी और जहरीली जड़ी बूटियाँ भी, सूखे पत्ते भी बिखरे हुए हैं और कचरा भी। एक अनाड़ी शख्स शायद कांटों में उलझ जाए या कचरे पर ध्यान देना शुरू कर दे, लेकिन एक माहिर माली क्या करता है, उसकी नज़र इंतखाब बड़ी कमाल होती है। वो हज़ार कांटों के दरमियान से गुजरता है मगर ध्यान सिर्फ फूल पर रखता है। वो कांटों को बुरा भला नहीं कहता, लड़ता नहीं उनसे, बस एहतियात से उनसे बचकर फूल पर नज़र रखता है और फूल को चुन लेता है। तुम्हारी ज़िंदगी भी ऐसा ही एक बाग है। यहाँ हर तरह के लोग हैं, हर तरह के हालात हैं, सिचुएशंस हैं। यहाँ सुख भी है, दुख भी। यहाँ तारीफ़ करने वाले भी, तनकीद करने वाले भी मिल जाएंगे। मोहब्बत भी है और नफ़रत भी। अब ये तुम पर मुनहसर है, तुम क्या चुनते हो। अक्सर तुम क्या करते हो, तुम कांटे चुनते हो। किसी ने 10 साल पहले कोई तल्ख बात कही, तुमने आज तक उसे सीने से लगा रखा है, ये तुमने कांटा चुना है। किसी ने तुम्हारे साथ ज्यादती की थी, नफ़रत की आग में आज तक जल रहे हो, तुमने जहर चुना है। तुम माजी के पछतावों और मुस्तकबिल के अंदेशों का कचरा अपने जहन में जमा करने में एक्सपर्ट हो। तुम शिकायत के सूखे पत्ते इकट्ठे करते रहते हो और फिर कहते हो ज़िंदगी में खुशबू नहीं है, ज़िंदगी बोझल है। देखो, बाग का कसूर नहीं, चुनने का कसूर है, तुम्हारे इंतखाब का कसूर है। दाना कौन है? वो सच्चा सालिक, वो जागा हुआ शख्स जो माली की तरह होशियार होता है। वो ज़िंदगी के तजर्बों में से सिर्फ दानाई के फूल चुनता है। कोई बुरा भला कह दे तो वो उसमें से भी सब्र का सबक सीख लेता है। नाकामी होती है तो वो उसमें से भी तजर्बे का मोती निकाल लेता है। वो कांटों, दुखों पर ध्यान नहीं देता, बल्कि उस फूल, उस सीख, उस सबक पर नज़र रखता है जो कांटों के बीच खिला है। वो जानता है कांटे भी हस्ती का हिस्सा है, वजूद का हिस्सा है। इनसे लड़ने में वक्त ज़ाय नहीं करना, बस दामन बचाकर फूल हासिल कर लेना है। ये इंतखाब, ये चॉइस तुम्हारे पास हर लम्हे मौजूद है। तुम क्या चुनते हो, इससे तुम्हारी ज़िंदगी तय होगी। नफ़रत चुनोगे, अंदर जहन्नम बनेगा। मोहब्बत और मानी चुनोगे, अंदर जन्नत बनेगी। ज़मीन और आसमान को जीतने का यही मतलब है। तुम अपने अंदर ही जन्नत को तामीर कर लेना। इसके बाद बुद्धा कहते हैं, इस जिस्म को झाग की मानंद और शराब की तरह जान। तुम सब अपने जिस्म से कितनी मोहब्बत करते हो, इसे संवारते, सजाते, बेहतरीन लिबास पहनाते हो, बेहतरीन खुराक देते हो। समझते हो मैं ये जिस्म, तुम्हारी सारी पहचान, आइडेंटिफिकेशन, सारा गरूर इस मिट्टी के पुतले से जुड़ा है। अगर चेहरे पर एक झुर्री आ जाए तो परेशान हो जाते हो, बाल सफ़ेद होने लगें तो छुपाने लगते हो। इस जिस्म को हमेशा कायम रखने की कोशिश में लगे रहते हो। मगर बुद्धा क्या कह रहा है? वो कहता है ज़रा रुको और देखो ये जिस्म असल में है क्या। उन्होंने जिस्म को समंदर की झाग से तशबीह दी। कभी तुमने साहिल पर लहरों को टूटते देखा है? जब लहर किनारे से टकराती है तो सफ़ेद झाग बनती है।
दूर से देखो तो वो झाग कितनी उजली, कितनी ठोस, कितनी खूबसूरत लगती है। अगर सूरज की किरण पड़े तो उसमें कौसे कज़ा के रंग बिखर जाते हैं, हीरे की तरह चमक पड़ती है। लेकिन अगर मुट्ठी भर कर उस झाग को उठाओ तो हाथ में क्या आता है? कुछ भी नहीं, सिर्फ पानी के चंद कतरे जो उंगलियों से बह जाते हैं। वो ठोसपन, वो खूबसूरती, वो सॉलिड होना सब एक धोखा साबित होता है। वो सिर्फ हवा का एक बुलबुला था जो फट गया। ये जिस्म जिस पर इतना इतराया जाता है, ये उसी झाग की तरह है। दूर से देखो तो बड़ी रौनक है, बड़ी जान है, मगर गहराई में उतरो, ज़रा इसकी हकीकत को देखो तो हड्डियों, गोश्त और खून के सिवा क्या है? और इसका अंजाम क्या है? एक सांस की डोरी टूटी और ये सारा निज़ाम बिखर गया। मौत की एक लहर आई और इस जिस्म को ऐसे बहा ले गई जैसे समंदर झाग को बहा कर ले जाता है। ये जिस्म लम्हा ब लम्हा बदल रहा है। जो जिस्म आपका बचपन में था वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं होगा। ये मुसलसल बन रहा है और मिट रहा है, बिल्कुल बुलबुले की तरह। इस फानी चीज़ को अपनी पहचान बना लेना, इस पर अपनी हस्ती की इमारत खड़ी कर लेना, ये रेत पर महल बनाने के जैसा है। बुधा इसको कहते हैं शराब। शराब यानी माया, धोखा, वो जो दिखाई तो दे मगर हो ना। सहरा की तपती दोपहर में प्यासे हिरन को दूर रेत पर पानी चमकता नजर आता है। वो खुशी से दीवाना वार उस तरफ दौड़ता है। यकीन होता है कि वहाँ जिंदगी है। वो दौड़ता है, हाँफ जाता है, जबान बाहर निकल आती है, मगर पानी नहीं मिलता, क्योंकि पानी वहाँ था ही नहीं। वो सिर्फ सूरज की किरणों और रेत का एक बसरी धोखा था, एक ऑप्टिकल इल्यूजन। वो हिरन अपनी ही प्यास और अपनी ही नज़र के धोखे का शिकार होकर मर जाता है। तुम्हारी ज़िंदगी भी शराबों के पीछे भागने की ही एक कहानी है। तुम समझते हो कि खुशी चीज़ों में है। लगता है कि अगर बड़ा ओहदा मिल गया ज़िंदगी पुरसकून। ये शराब है। ओहदा मिलता है, सुकून कभी नहीं मिलता। जिम्मेदारी, खौफ बढ़ जाता है। तुम्हें लगता है कि अगर फला इंसान मेरी ज़िंदगी में आ जाए तो बस मैं मुकम्मल हो गया। ये शराब है। वो इंसान आता है और कुछ अरसे बाद वही रिश्ता बेजार कुन, तकलीफ दे बन जाता है। तुम दौलत के पीछे भागते हो कि इसमें तहफ़्फ़ुज़ है, सिक्योरिटी है। ये शराब है। दौलत आती है तो अपने साथ हज़ार तरह की इनसिक्योरिटीज़, अदम तहफ़्फ़ुज़ लेकर आती है। तुम सारी ज़िंदगी इन शराबों के पीछे दौड़ते हो, ये सोच कर के मंजिल बस वहाँ है, थोड़ा और आगे। और आखिर में मिलती क्या है? जैसे सहरा में हिरन के साथ होता है, तुम प्यासे ही मर जाते हो। तुम्हारा हाल उसी हिरन जैसा है जिसने शराब को पानी समझा था। तो क्या बुधा ये बात बताकर तुम्हें मायूस कर रहा है? क्या वो ये कह रहा है कि ज़िंदगी बेमानी है? नहीं, हरगिज़ नहीं। वो जगाने की कोशिश कर रहा है। वो कह रहा है, रेत में पानी ना ढूंढो, वहाँ पानी है नहीं, पानी तुम्हारे अंदर है। सुकून बाहर की दुनिया में कहीं है नहीं, तुम्हारे मन की गहराई में है। खुशी चीज़ों में है नहीं, तुम्हारी रूह की आज़ादी में है। बाहर की दुनिया में सिर्फ शराब हैं, हकीकतें सारी सिर्फ तुम्हारे अंदर हैं, बातिन में हैं। इसके बाद बुद्धा कहता है, जो इंसान इस हकीकत को जान ले वो मौत के फरिश्ते की निगाहों से भी ओझल होकर निकल जाता है। क्या मतलब हुआ इसका? मौत के फरिश्ते की निगाहों से बच निकलना। क्या वो इंसानी जिस्म के तौर पर नहीं मरेगा? नहीं, मरेगा तो वो भी जिस्म के तौर पर ही। जिस्म तो मट्टी है और मट्टी को मट्टी में मिलना है। कानून कुदरत किसी के लिए नहीं बदलता। लेकिन इसका मतलब क्या है कि मौत उसे देख ना पाएगी। समझो, मौत सिर्फ उसे देखती है, उसे अपना शिकार करती है जो खुद को जिस्म समझ ले। मौत जिस्म को मारती है, मगर जो जागा हुआ इंसान है, इनलाइटेंड है, जिसने जान लिया कि मैं ये जिस्म नहीं जो झाग जैसा है, मैं तो वो देखने वाला शऊर हूँ जो इसके अंदर है, वो मौत की पहुँच से दूर निकल गया। जब मौत आती है तो वो मुस्कुराता है। वो कहता है, तो सिर्फ मेरे लिबास को, मेरे मकान को छीन सकती है, मुझे नहीं। मैं तो वो हूँ जो ना पैदा होता है ना मरता है। ऐसा इंसान मौत के लिए गायब हो जाता है। मौत उसकी रूह को छू भी नहीं सकती। वो मौत के पार चला जाता है, बियॉन्ड डेथ। ये है अब्दी ज़िंदगी जो सिर्फ जागने वाले को मिलती है। इसके बाद बुद्धा कहते हैं,
موت بے ہوش کو ایسے بہا لے جاتی ہے جیسے سوئے ہوئے گاؤں کو سیلاب، جس کا من دنیا کی رنگینی اور خواہشات کے پھول چننے میں کھویا ہوا ہو۔ سوچو، ایک گاؤں ہے، پہاڑی ندی کے کسی کنارے پر بسا ہے، رات کا وقت ہے، تاریکی ہے، گاؤں گہری نیند میں سویا ہے، لوگ بے خبر ہیں، کوئی اپنے نرم بستر پر محو خواب ہے، کوئی کل کے منصوبے بنا رہا ہے، کوئی اپنی دولت گن کر سویا ہے، کسی کو کوئی فکر نہیں، کوئی اندیشہ نہیں، اور اچانک پہاڑوں پر کہیں بادل پھٹا، ندی میں کہیں طغیانی آئی، پانی کا ایک بہت بڑا منہ زور ریلا ایک دیو کی طرح شور مچاتا آیا، گاؤں والوں کو سنبھلنے کا موقع تک نہ دیا۔ ان کی نیند، ان کے خواب، ان کے منصوبے، ان کے گھر، ان کے رشتے، سب کچھ پل بھر میں پانی نے تنکوں کی طرح بہا دیا۔ ایک لمحہ پہلے سب کچھ تھا، دوسرے لمحے صرف پانی کا شور اور موت کی گونج۔ یہ سویا ہوا گاؤں کہیں اور نہیں، یہ تمہاری دنیا ہے، یہ تمہارا ایگوئک مائنڈ ہے، انائی ذہن، اور وہ پھول چننا کیا ہے، یہ تمہاری وہ لامتناہی ڈیزائرز ہیں۔ تم زندگی کو یوں گزارتے ہو جیسے ایک باغ میں سیر کر رہے ہو اور پھول چن رہے ہو۔ ابھی میں جوان ہوں، ابھی تو میں نے کیریئر بنانا ہے، ابھی تو مکان بنانا ہے، پھر شادی کرنی ہے، پھر بچوں کو سیٹل کرنا ہے، بس یہ ایک خواہش اور پوری ہو جائے، پھر میں سکون سے بیٹھوں گا، پھر میں خدا کو یاد کروں گا۔ تم ایک کے بعد دوسرا پھول چنتے جاتے ہو، تمہارا دامن بھر جاتا ہے مگر ہوس نہیں بھرتی۔ تم سمجھتے ہو کہ یہ میلہ ہمیشہ لگا رہے گا، تم مگر اس پروسیس میں ایک چیز بھول جاتے ہو، موت۔ تم سمجھتے ہو کہ موت تو دوسروں کے لیے ہے، بوڑھوں کے لیے ہے، بیماروں کے لیے ہے، میرے لیے بھی وقت ہے، بہت وقت۔ تم موت کے بارے میں بات کرنا تک پسند نہیں کرتے، محفل میں کوئی موت کا ذکر چھیڑ دے تو کہتے ہو، ارے بھائی کیا منحوس باتیں کر رہے ہو، تو جینے کی بات کرو۔ تم موت کی طرف پیٹھ کر لیتے ہو، جیسے شتر مرغ ہوتا ہے نا، ریت میں اپنا سر چھپا لیا۔ اسی کا نام ہے انکانشیس جینا۔ یہ وہی غفلت ہے جس کی بات بدھا کر رہا ہے، یہ ہے سویا ہوا ہونا۔ اور پھر اچانک سیلاب آ جاتا ہے۔ موت کوئی نوٹس دے کر تھوڑی آتی ہے، یہ دروازہ کھٹکھٹا کر پوچھتی تھوڑی ہے، سر سارے کام ہو گئے؟ کیا بچوں کی شادی ہو گئی؟ مکان مکمل ہو گیا؟ اجازت ہو تو میں آ جاؤں؟ نہیں، بس وہ آ جاتی ہے۔ ایک دل کا دورہ، ایک ایکسیڈنٹ، ایک سانس رکی، اور انسان کو اس کی تمام تر ادھوری خواہشوں، حسرتوں، منصوبوں کے ساتھ بہا کر لے گئی۔ انسان چلاتا رہ جاتا ہے، بس ایک لمحہ اور دے دو، میں نے ابھی جیا ہی نہیں، میں تو ابھی تیاری میں تھا۔ مگر سیلاب کب کسی کی فریاد سنتے ہیں، وہ بس بہانے آتے ہیں اور بہا کر لے جاتے ہیں۔ بدھا کہتے ہیں جو انسان اس حقیقت سے غافل ہے، اس کا انجام یہی ہے، وہ زندگی بھی کھوتا ہے اور موت بھی اسے بدترین حالت میں پاتی ہے۔ مگر جو جاگا ہوا ہے، وہ سیلاب کا انتظار نہیں کرتا، وہ یہ نہیں کہتا کہ سیلاب نہیں آئے گا، وہ جانتا ہے ندی ہے تو سیلاب آئے گا، وہ تیار رہتا ہے، وہ اپنا گھر نچلی سطح پر نہیں بناتا، وہ اپنا آشیانہ ہوش کی بلندیوں پر بناتا ہے، کانشیس زندگی جیتا ہے۔ جب سیلاب یعنی موت آتی ہے، تب وہ گھبراتا نہیں، وہ اسے نیچے سے گزرتا ہوا دیکھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ پانی میرے جسم کو، میرے مال کو بہا لے جائے گا، مگر میرے ہوش کو، میری روح کو نہیں ڈبو سکتا۔ جاگا ہوا انسان موت سے پہلے مر چکا ہوتا ہے، اپنی انا کو مار کے، اسی لیے اسے موت کا کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ وہ موت کو بھی ایک واقعے کے طور پر دیکھتا ہے، وہ اس کا کوئی شکار نہیں بنتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر جیا کیسے جائے؟ اگر دنیا سراب ہے، ڈیلیوژن ہے، اگر موت سر پر کھڑی ہے، تو کیا پھر سب کو چھوڑ چھاڑ کر جنگلوں میں نکل جائیں؟ کیا کاروبار، رشتے، خاندان سب ترک کر دیں؟ نہیں، بدھا یہ نہیں کہہ رہا۔ وہ زندگی سے بھاگنے کی نہیں، زندگی کو صحیح ڈھنگ سے جینے کی بات کر رہا ہے۔ اور آج کے ایپیسوڈ کے آخری کال میں اس نے جینے کا ایک خوبصورت، لطیف اور آرٹسٹک ڈھنگ دیا ہے۔ کہتا ہے، جیسے بھمرا پھول کے رنگ اور خوشبو کو نقصان پہنچائے بغیر صرف اس کا رس لے کر اڑ جاتا ہے، ایسے جیتا ہے ایک جاگا ہوا انسان اس دنیا میں۔ یہ صرف ایک تشبیہ نہیں، یہ آرٹ آف لیونگ، جینے کا فن ہے۔ بھنورے کو کبھی غور سے دیکھا ہے؟ اس کے رویے میں چھپے ہوئے راز کو سمجھو۔
भंवरा जब फूल पर आता है तो वो फूल पर हमला नहीं करता, वो फूल को नोचता नहीं, वो उसकी नाजुक पत्तियों को मसलता नहीं, उस पर बैठता है, बोझ नहीं बनता, ऐसी नज़ाकत से बैठता है कि फूल को पता तक नहीं चलता कि उस पर कोई बैठा है या उससे कुछ लिया गया है। वो फूल की खूबसूरती, उसके रंग, उसकी रूह, उसकी खुशबू को ज़रा भी नुकसान नहीं पहुंचाता। फूल वैसा ही खिला रहता है, वैसा ही महकता रहता है। दूसरी चीज़, भंवरे का मकसद सिर्फ रस है, नेक्टर। वो फूल के पत्तों, जड़ों, उसकी टहनियों से कोई गर्ज नहीं रखता। वो कचरा इकट्ठा ही नहीं करता, सिर्फ काम की चीज़ ली और चल पड़ा। तीसरी चीज़, रस लेने के बाद भंवरा वहीं डेरे नहीं डाल देता। वो फूल से चिपकता नहीं, वो ये नहीं कहता फूल मेरा है, कब्जे की कोशिश नहीं करता, फूल को साथ ले जाने के जतन नहीं करता। रस लिया और उड़ गया, आज़ाद। न फूल कैद हुआ न भंवरा, फूल अपनी जगह खुश, भंवरा अपनी जगह खुश। अब जरा इंसान को देखो, कैसे रहता है ये इस दुनिया में। क्या ये भंवरे की तरह है? नहीं, ये हाथी की तरह है जो शीशे के घर में घुसा बैठा है। तुम जहां जाते हो तबाही फेर देते हो। तुम अपने रिश्तों को देखो, दूसरे इंसानों को नोचते हो, मोहब्बत के नाम पर दूसरों पर कब्जे करते हो। ये मेरी बीवी, ये मेरा शौहर, ये मेरा बेटा, ये वैसा ही करेगा जैसा मैं चाहता हूँ। तुम दूसरे की आज़ादी, दूसरे की इंडिविजुअलिटी, उसकी इनफरादियत, उसकी अपनी रूह की खुशबू को मसख कर देते हो। तुम दूसरे पर मालकाना हक जमाते हो, उसे निचोड़ लेना चाहते हो, और नतीजा क्या निकलता है? रिश्ते अपनी मौत आप मर जाते हैं, फूल मुरझा जाता है। तुम इस नेचर के साथ क्या कर रहे हो? दरिया गंदे कर दिए, हवा तुम्हारी जहरीली है, जंगल काट के साफ किए जा रहे हो। तुमने दुनिया से फ़ायदा उठाने के चक्कर में दुनिया को वीरान कर दिया है। तुम चीज़ों के साथ क्या करते हो? उनके गुलाम बन जाते हो। तुम चीज़ें इस्तेमाल थोड़ी करते हो, चीज़ें तुम्हें इस्तेमाल करती हैं। तुम जमा करते हो, जोड़ते हो और फिर उन पर पहरेदार बन जाते हो। बुद्ध कहता है, इनलाइटन्ड आदमी बनो, दुनिया में रहो, गांव में चलो, बस्ती में रहो, कारोबार करो, शादी करो, बच्चे पालो, मगर भंवरे की तरह। कैसे? बोझ मत बनो। तुम्हारा होना किसी के लिए तकलीफ का बायस ना हो, किसी का हक मत मारो, किसी के रास्ते का पत्थर मत बनो। दूसरा, मालिक मत बनना, चीज़ों को इस्तेमाल करना, कब्जा जमाने की हवस ना पालना। जान लो कि ये सब आर्जी है। तीसरा, एसेंस हासिल करो, जिंदगी के तजर्बात से सिर्फ दानाई का रस लो, वाकयात ही में मत उलझ कर रह जाओ। उनसे मिलने वाले सबक को लो और आगे बढ़ो। आज़ाद रहो, आज़ाद रहने दो। मोहब्बत करो मगर जंजीर मत पहनाओ। दूसरे को भी फूल की तरह खिलने का मौका दो और खुद भी आज़ाद फिजाओं में उड़ना सीखो। वाइज कौन है? वो जो दुनिया की कीचड़ में कमल की तरह रहता है। पानी कीचड़ उसे छू नहीं पाता। उगता वो कीचड़ से है मगर कीचड़ से मावरा हो जाता है। रहता वो इसी दुनिया के हुजूम में है मगर तन्हा। वो सब के साथ है, किसी का गुलाम नहीं। वो दुनिया से गुजरता है तो ऐसे जैसे परिंदा हवा में गुजर गया, कोई निशान नहीं, कोई बोझ नहीं। वो खामोशी से काम करता है, अपनी रूह की ग़िज़ा रस दानाई निचोड़ता है और अपनी अब्दी मंजिल की तरफ उड़ जाता है।